ज्ञानतिमिरशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतालं परमानन्दमाधवं चैतन्येश्वरम्। भगवद गीता 10th चैप्टर 33rd श्लोका। मेरे पीछे रिपीट कीजिए। अक्षरानाम अकारोस्मि, अक्षरानाम अक्षराणाम् अकारोस्मि द्वन्द्वा सामासिकस्य च द्वन्द्वा सामासिकस्य च अहम् एवाक्ष्यः कालो, अहम् एवाक्ष्य कालो धाता हम विश्वतो मुखा, दाता हम विश्वतो मुखा। हाँ, फिनिश करके आ जाओ। हाँ जी। ओके, कौन पढ़ेगा ट्रांसलेशन? कौन वॉलंटियर करे? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, प्लीज पढ़िए। Translation of letters, I am the letter A, and among compound words, I am the dual compound. I am also in inexhaustible time, and of creators, I am Brahma. Should I continue with the purport? हाँ प्लीज आप कंटिन्यू करिए, पढ़ भी कर लीजिए। Purport. Ekara, the first letter of the Sanskrit alphabet, is the beginning of the Vedic literature. Without Akara, nothing can be sounded. Therefore, it is the beginning of sound. In Sanskrit, there are also many compound words, of which the dual word, like Ramakrishna, is called Dvanda. In this compound, the words Rama and Krishna have the same form, and therefore the compound is called dual. Among all kinds of killers, time is the ultimate because time kills everything. Time is a representative of Krishna because in due course of time there will be a great fire and everything will be annihilated. Among the living entities who are creators, Brahma, who has 4 heads in the chief, is the chief. Therefore, he is a representative of the Supreme Lord Krishna. Hare Krishna. ओके, हरे कृष्णा। तो यहाँ पे कृष्ण बता रहे हैं कि अक्षरों में वो अ हैं, और प्रभुपाद एक्सप्लेन कर रहे हैं यहाँ पे कि कैसे कोई भी शब्द अगर आप लिखते हो या बोलते हो तो उसमें अ की साउंड आई जाती है एक्चुअली, ठीक है ना। और एग्जाम्पल भी दिया है, राम कृष्णा, ये कंपाउंड वर्ड है, ठीक है ना। इट्स कॉल्ड द्वंद्व। इन दिस कंपाउंड वर्ड्स राम एंड कृष्णा हैव द सेम फॉर्म एंड देयरफॉर द कंपाउंड इज कॉल्ड डुअल। तो हर वर्ड में आ रहा है अक्षरा, इसीलिए भगवान हर चीज में तो अ है वर्ड्स उसमें, अक्षरों में। फिर आगे बता रहे हैं अमंग ऑल काइंड्स ऑफ किलर्स टाइम इज द अल्टीमेट बिकॉज टाइम किल्स एवरीथिंग। समय से सब कुछ नष्ट हो जाता है, तो टाइम जो है वो रिप्रेजेंट करता है कृष्ण। और सारी लिविंग एंटिटीज में से टॉप मोस्ट कौन है? जो क्रिएटर है ब्रह्मा जी, वो भगवान को रिप्रेजेंट कर। ओके नेक्स्ट, कौन पढ़ेगा 34th? पहले हम रिसाइट करते हैं श्लोका। मृत्यु सर्वहरश्चाहम्, मृत्यु सर्वहरश्चाहम्, उद्भावाश्च भविष्यताम्, बुद्धावश्च भविष्यताम्, कीर्ति श्रीवाक् च नारीणाम्, कीर्ति श्रीवाक्चर्चया नारीणाम्, स्मृतिर्मेधा धृति क्षमा। स्मृतिर्मेधा धृतिः क्षमा। कौन पढ़ेगा ट्रांसलेशन और पॉपर्ट? I can read, Prabhuji. हाँ जी पढ़िए माता। Hare Krishna. Translation. I am all devouring death. I am the generating principle of all is yet to be. Among women, I am fame, fortune, fine speech, memory, intelligence, steadfastness, and patience. Perfect. As soon as a man is born, he dies at every moment. Thus, death is devouring every living entity at every moment. But the last stroke is called death itself. The death is Krishna.
As for fortune development, all living entities undergo 6 basic changes. They are born, they grow, they remain for some time, they reproduce, they dwindle, they final, they vanish. Of these changes, the first is deliverance from the womb, and that is Krishna. The first generation is the beginning of all fortune activities. Mom, can I go to the park? Okay, close the door. The 7 opulences listed: fame, fortune, fine speech, memory, intelligence, steadfastness, and patience are considered feminine. If a person possesses all of them or some of them, he becomes glorious. If a man is famous as a righteous man, thus that makes him glorious. Sanskrit is a perfect language and is therefore very glorious. If after studying one can remember a subject matter, he is gifted with a good memory or smriti. And the ability not only to read many books on different subject matters, but to understand them and apply them when necessary is intelligence, medha, another opulence. The ability to overcome unsteadiness is called firmness or steadfastness, dhriti. And when one is fully qualified, yet is humble and gentle, and when one is able to keep his balance both in sorrow and in ecstasy of joy, he has the opulence called patience, kshama. Hare Krishna. हरे कृष्णा. ओके, तो यहाँ पे कई सारी चीजें बताई हैं. तो कृष्णा क्या कह रहे हैं कि आई एम ऑल डिवोरिंग डेथ एंड आई एम जनरेटिंग प्रिंसिपल ऑफ ऑल दैट इज येट टू बी अमंग वुमेन. आई एम फेम, फॉर्च्यून, फाइन स्पीच, मेमोरी, इंटेलिजेंस, स्टेडफास्टनेस एंड पेशेंस. तो यहाँ पे डेथ के कॉन्टेक्स्ट में प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि एक्चुअली हर क्षण में हमारी एक तरह से मृत्यु हो रही है. क्यों हो रही है? क्यों हो रही है हर क्षण में मृत्यु? को बता सकते हैं ऐसे क्यों कह रहे हैं कि डाइज एवरी मोमेंट? कि प्रभु जी हमारी उम्र बढ़ती जा रही है ना, हर सेकंड हमारा चला जा रहा है. ओके, ऑल राइट. और कोई? और क्या बता सकते हैं क्यों लिखा है ही डाइज एट एवरी मोमेंट? कोई कह सकता है नहीं एवरी मोमेंट तो नहीं यार, ये तो मैं तो देखो या प्रभु जी ऐसा कि कॉल शुरू हुई थी तब भी मैं यहाँ था ठीक ठाक, अभी भी हूँ. ओके, ये तो नहीं हो सकता. आई वाज थिंकिंग प्रभु जी की पूरे यूनिवर्स में इतने लोग हैं, कोई ना कोई हर क्षण तो मर ही रहा है. तो बट क्या कह रहे हैं? ही डाइज एट एवरी मोमेंट. ही डाइज, यस प्रभु जी. तो वही मुझे नहीं समझ नहीं. तो क्यों ऐसा कह रहे हैं? कोई और बताना चाहेगा? क्या लगता है आप लोगों को? Krishna, maybe because of the suffering of the material world and ignorance जो हम लोग रखते हैं. तो उसके वजह से डाइज क्यों है एवरी मोमेंट? इग्नोरेंस है, ठीक है. जब हमारा पाथ ही फोकस ही गलत है, पाथ ही गलत है, तो फिर हम इंटरनली स्पिरिचुअली और मतलब इंटेलिजेंटली भी हम लोग डाई हो रहे हैं बिकॉज वी आर लिविंग इन अ फेक, मतलब फेक इल्यूजनरी वर्ल्ड, नॉट द रियल वर्ल्ड. अच्छा, ओके ओके. और कोई बताना चाहेगा? As soon as man is born, he dies at every moment. ये क्या बात है? हाँ, कौन बताना चाहेगा? क्लास. ये हो सकता है ये हो कि जैसे ही हम लोग बॉर्न होते हैं वैसे ही हमारे जैसे हम लोग बढ़ते हैं, तो जैसे मृत्यु तो होनी है ना, तो हम लोग हर पल जो हो रहा है, एक एक पल हम लोग उसके पास जा रहे हैं, तो एवरी पल हम लोग मृत्यु के नजदीक जा रहे हैं शायद ये. हाँ, वेरी नाइस वेरी नाइस. ओके, और कोई बताना चाहेगा? तो ये बड़े अच्छे से बताया कि एक्चुअली हमारी जब ये शरीर हमें दिया गया तो हमारे को एक पर्टिकुलर टाइम के लिए दिया कि भाई आपका शरीर है, इसको आप इस्तेमाल करो.
और अगर मान लो आपको 1 साल के लिए कोई लीज के लिए देता है चीज, और जैसे जैसे दिन बढ़ रहे हैं तो आपकी लीज खत्म हो रही है, अभी लीज खत्म होती जा रही है एवरी मोमेंट, है कि नहीं? तो वही पॉइंट है कि ही डाइज एवरी मोमेंट, मतलब कि हर मोमेंट में वो जा रहा है। और दूसरा इसका मतलब ये एक्चुअली हमारी बॉडी जो है ना, अगर आप देखो बचपन की जो हमारा शरीर था वो एक्चुअली अब हमारा शरीर नहीं है। अभी अगर आप 2 फोटो लेकर आओ, जब 1 साल का था और अब कोई 10 साल का हो गया, उनको कंपेयर करो आप, तो सेम नहीं है शरीर। क्यों? क्योंकि पुराना शरीर इज डेड। इवन साइंस भी जो है वो कहती है कितने सारे सेल्स हमारी बॉडी में मरते रहते हैं, हर रोज के रोज मरते जा रहे हैं सेल्स, और नए सेल्स आते जाते हैं। तो हमारी जो बॉडी पहले थी वो बाद में नहीं रहती, बॉडी चेंज होती रहती है हर मोमेंट। इसलिए भगवत गीता 2nd चैप्टर में पढ़ा था ना, कैसे शरीर जो है वो चेंज होता है फ्रॉम चाइल्डहुड टू बॉयहुड, बॉयहुड टू यूथ, यूथ टू ओल्ड एज। Similarly, the soul gets another body after death. Sober person is not bewildered by such a change. ऐसे करके हमने एक श्लोक पढ़ा था, याद है आप लोगों को? धीरज तत्र न मोह्यति, राइट प्रभु जी? Is that one? तत्र न मोह्यति, yes. Yes. तो ये कहा गया यहाँ पे कि जैसे जैसे टाइम बीतता जा रहा है, एक्चुअली हम मृत्यु के करीब आते जा रहे हैं। हमारे जो यहाँ पे लीज का टाइम है वो ओवर होता जा रहा है। Thus death is devouring every living entity at every moment, but the last stroke is called death itself. हालांकि एक प्रोसेस है, डेथ होती जा रही है, लेकिन फाइनल जो होता है उसको लोग डेथ कहते हैं। और मृत्यु के रूप में भी भगवान आते हैं एक्चुअली। जब डिवोटीज की बारी आती है तो कृष्णा उनको लेके भगवत धाम चले जाते हैं। और कृष्णा कैसे आएंगे? अपनी एनर्जीज के थ्रू आएंगे, चाहे विष्णु दूत आएंगे वहां पे। और जो भगवान के भक्त नहीं है उनके लिए भी भगवान आते हैं, लेकिन किसके फॉर्म में आते हैं? वो यमदूत की फॉर्म में आ जाएंगे, यमराज के मैसेंजर्स, और लेके जाएंगे और वहां पनिश करेंगे जो जो गलत काम किए हैं उसके लिए, और प्रिपेयर करेंगे अगला शरीर कौन सा लेना है आपने। मान लो किसी को नर्क में शरीर मिलना है, तो नर्क में इतनी ज्यादा वहां पे टॉर्चर होता है कि उसके लिए शरीर को प्रिपेयर करना पड़ता है। तो पूरी प्रिपरेशन होती है, वहां पे मिलती है। इसलिए आप देखो, बच्चा जब पैदा होता है तो कोई उसे सिखाता नहीं है सांस लेना, कि कैसे सांस लेनी है, या उसको कोई सिखाता नहीं है कि कैसे फीड लेनी है मदर से, दूध कैसे पीना है। वो क्यों? क्योंकि उसकी ट्रेनिंग उसकी पहले हो चुकी है इसकी, कि कैसे अब इस बॉडी में आपको अपने आप को रखना है। इंसान के बच्चे को तो थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन कई जानवर के बच्चे तो कुछ ही देर में खड़े भी हो जाते हैं पैदा होने के बाद, 1-2 दिन में खड़े हो जाते हैं पूरा। तो ये कैसे है? ये भी उसकी ट्रेनिंग है, पहले हुई हुई है। तो ये भगवान की एनर्जी शक्तियां कर रही है सब। एज फॉर फ्यूचर डेवलपमेंट ऑल लिविंग एंटिटीज अंडरगो 6 बेसिक चेंजेस। तो 6 तरीके के चेंजेस सब में हो रहे हैं। क्या? एक तो पैदा होना, बॉर्न होते हैं, ग्रो करते हैं और सस्टेन करते हैं, ग्रो एंड रिमेन फॉर सम टाइम। फिर आगे रिप्रोड्यूस, बच्चे पैदा करते हैं, फिर धीरे धीरे वो ओल्ड हो जाते हैं और फाइनली डाई। तो ये 6 चेंजेस इस शरीर को हो रही है, सबको गुजरना पड़ता है। और पहली इसमें से क्या है? पहली इसमें से ऐसे है, बर्थ होना। बर्थ मतलब गर्भ में, माता के गर्भ में से आता है बच्चा, और वो कृष्णा का अरेंजमेंट है। अगर आप देखो, स्टडी करो पूरी, तो आपको लगेगा कैसे कैसे भगवान का इतना परफेक्ट अरेंजमेंट भगवान ने हर चीज का किया हुआ। और ये परफेक्ट अरेंजमेंट तो है, लेकिन इसका मकसद क्या है? कि हमारे को स्पिरिचुअली एडवांस करके लेके जाना। क्योंकि ये इसलिए क्रिएट किया गया कि हमारी इच्छाएं थी, हमारी इच्छाएं थी कि हम ऐसे मटेरियल वर्ल्ड में आए और यहाँ पे आके मटेरियल डिजायर्स को फुलफिल करें, इसलिए भगवान ने ऐसा अरेंजमेंट किया। अदरवाइज बर्थ तो बिगिनिंग है सारी प्रॉब्लम्स की, लेकिन जो बर्थ है वो एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग भी हो सकती है, क्योंकि अगर ह्यूमन लाइफ हमारे को मिली है तो उसमें हम परफेक्ट कर सकते हैं अपनी लाइफ, बाकियों में नहीं कर सकते।
फिर आगे कृष्णा बोल रहे हैं among women I am fame, fortune, fine speech, memory, intelligence, steadfastness and patience. यहाँ बताया गया है कि 7 opulences जो यहाँ पे लिस्ट किए हैं ये सारे फेमिनाइन कंसिडर होते हैं, और अगर एक कोई व्यक्ति है जिनके अंदर ये सारे हों तो वो बहुत ज्यादा ग्लोरियस है, फेमस हो जाते हैं. If a man is famous as a righteous man, that makes him glorious. Sanskrit is a perfect language and therefore very glorious. If after studying one can remember a subject matter, he is gifted with good memory. तो अगर किसी की बुद्धि अच्छी है, मेमोरी अच्छी है और उनको याद हो जाता है तो वो काफी फेमस हो सकते हैं इस वजह से. गुड मेमोरी और स्मृति शक्ति बहुत अच्छी है उनकी. पहले के टाइम में लोगों को बहुत पूरी ग्रंथ याद होती थी, कंठस्थ होती थी. अभी आज के टाइम में क्या हो गया, मुश्किल हो गया. आजकल तो हम 1-2 चीजों के बाद ही भूल जाते हैं. Before there was no forgetting. How did the word forget come in Sanskrit? We'll have to research it. पता करना पड़ेगा. And the ability not only to read many books on different subject matters but to understand them and apply them when necessary is intelligence. तो मेधा means intelligence. Intelligence मतलब कि सिर्फ उनको याद मेमोराइज नहीं करा बल्कि एक्चुअली समझ के उसको अप्लाई करना, वो इंटेलिजेंस है. Ability to overcome unsteadiness is called firmness or steadfastness, dhriti. तो steady मतलब कंसिस्टेंटली कोई चीज करते रहना, स्टेडीली, ठीक है ना. अनस्टेडी मीन्स कभी करना कभी नहीं करना. तो यहाँ बता रहे हैं कि ये एबिलिटी की चीज को करते रहना कंसिस्टेंटली, स्टेडीली, वो एक क्वालिटी है. When one is fully qualified yet is humble and gentle, and when one is able to keep his balance both in sorrow and in ecstasy of joy, he has the opulence called the patience, क्षमा. तो ये पेशेंस, तो ये सारी पॉजिटिव क्वालिटीज हैं. अगर देखें हम, नम्रता, हम्बल होना, जेंटल होना, तो इससे बहुत ज्यादा व्यक्ति फेमस हो जाते हैं. जो दुख हैं या सुख हैं उसमें अपने आप को बैलेंस रखना, ये भी एक ऑपुलेंस है. और यहाँ पे बताया गया उसको पेशेंस, क्षमा क्या है. तो ये क्वालिटी जो है, सारी इन क्वालिटीज का क्या कहा गया है, अमंग वुमेन. तो ये सब फेमिनाइन क्वालिटीज बताई गई है भगवत गीता. ओके, चले आगे. कोई किसी का कोई क्वेश्चन, कोई कमेंट, कोई पॉइंट है? ओके, नेक्स्ट करते हैं. बृहत साम तथा सामनाम, बृहत सामनाम तथा सामनाम, गायत्री छंदसामहं, गायत्री छंदसाम् अहम्, मासानां मार्गशीर्षोऽहम्, मासानां मार्गशीर्षोऽहम्, ऋतूनां कुसुमाकरा, ऋतूनां कुसुमाकरा. Okay, कौन पढ़ेगा इसका ट्रांसलेशन? पॉपट, May I read? I can. आप पढ़िए भव्य, आप पढ़िए. Translation of the hymns of the Sama Veda. I am the Brahat Sama, and of the poetry of the Gayatri. Of months I am Margashirsa, November, December, and of seasons I am flower bearing spring. Should I read purport? Yes, please. It has already been explained by the Lord that amongst all the Vedas, he is the Samved. The Samved is rich with the beautiful songs played by the various demigods. One of these songs is Brihad Sama, which has an exquisite melody and is sung at midnight. In Sanskrit, there are definite rules and that regulate poetry. Rhyme and meter are not written whimsically, as in much modern poetry.
Amongst the regulated poetry, the Gayatri Mantra, which is chanted by the duly qualified Brahmanas, is most prominent. The Gayatri Mantra is mentioned in the Srimad Bhagavatam. Because the Gayatri Mantra is specially meant for the God realization, it represents the Supreme Lord. This mantra is meant for spiritually advanced people, and when one attains success in chanting it, he can enter into the transcendental position of the Lord. One must first acquire the qualities of the perfectly situated person, the qualities of goodness, according to the laws of the material nature, in order to chant the Gayatri Mantra. The Gayatri Mantra is very important in Vedic civilization and is considered to be the sound incarnation of Brahman. Brahma is the initiator and it is passed down from his disciplic succession. The month of November and December is considered the best of all months because in India, grains are collected from the fields at this time and the people become very happy. Of course, spring is the season is a season universally liked because it is neither too hot nor too cold, and the flowers and trees blossom and flourish. In spring, there are also many ceremonies commemorating Krishna's pastimes. Therefore, this is considered to be the most joyful of all seasons, and it is the representative of the Supreme Lord Krishna. Hare Krishna. हरे कृष्णा. ओके ग्रेट. तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं कृष्णा के हिम्स में, of the hymns in Samved, I am the Brihat Sam, and of poetry I am Gayatri. तो इसके कॉन्टेक्स्ट में प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि it is already been explained by the Lord that amongst the Vedas he is Samved. तो सामवेद, वेदों में सब सामवेद है भगवान, और सामवेद में कई ब्यूटीफुल सॉन्ग्स हैं प्लेड बाय वेरियस डेमिगॉड्स. देवी देवता जो हैं वो सॉन्ग्स कर रहे हैं, और इनमें जो बृहत साम है ये बहुत ही ज्यादा जो है मेलोडियस है, एक्सक्विजिट मेलोडी, एंड इट्स सung एट मिडनाइट. और मिडनाइट में भगवान के खुशी के लिए गाया जाता है. और फिर आगे बता रहे हैं कि पोएट्री जो है संस्कृत में बहुत साइंटिफिकली एक्चुअली होती है. राइम, मीटर, ये सब बड़े केयरफुली और ट्रेनिंग के बाद आप यूज कर सकते. मॉडर्न पोएट्री के जैसे नहीं है जहां पे कहीं पे भी कुछ भी डालते हैं. और फिर यह बताया कि जो पोएट्री, जो काव्य है, उसके अंदर गायत्री मंत्र के बारे में बताया गया है कि गायत्री मंत्र जो है वो ऐसे व्यक्तियों को रिसाइट करना चाहिए जो ड्यूली क्वालिफाइड ब्राह्मण है, मतलब द्विजा है, मतलब उनका इनिशिएशन हो चुका है. अब आजकल हम देखते हैं कोई भी कहीं पे भी गाने लग जाता है, एक्चुअली ऐसे है नहीं है. ये बड़े केयरफुली इसको सही मीटर में सही तरीके से इसका रिसाइटेशन होना चाहिए, नहीं तो लोगों को इसके रूल्स एंड रेगुलेशंस अगर ना फॉलो करें तो प्रॉब्लम हो सकती है. इसीलिए कलयुग के लिए हरे कृष्णा महामंत्र दिया गया है, क्योंकि हरे कृष्णा महामंत्र में रूल्स रेगुलेशंस नहीं है और लोगों को उसका नेगेटिव इन्फ्लुएंस नहीं होगा एटलीस्ट. और पॉजिटिव तो फिर भी हो सकता है, अगर मान लो अच्छे से करोगे तो और अच्छा पॉजिटिव होगा. लेकिन गायत्री मंत्र और ऐसे कई सारे वैदिक मंत्र हैं जिनको सही तरीके से केयरफुली लिया नहीं, अगर आपने गलत तरीके से लिया तो उनके साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं. तो इसीलिए यहाँ बताया गया है कि वो ड्यूली क्वालिफाइड ब्राह्मण से लेना चाहिए, मोस्ट प्रोमिनेंट. और अगर हम अच्छी तरीके से लेंगे तो इससे गॉड रियलाइजेशन में हमारे को मदद मिलेगी, हम भगवान की तरफ बढ़ेंगे. दिस मंत्र इज मेंट फॉर स्पिरिचुअली एडवांस, लेकिन जो पहले ऑलरेडी स्पिरिचुअली एडवांस्ड हैं वो लोग ले सकते हैं. तो हमारे इसमें भी होता है कि आपको पहले गायत्री चैंट करने से पहले आपको क्या कहते हैं, फर्स्ट इनिशिएशन, सेकंड इनिशिएशन, ये सब लेने के बाद आप कर सकते. When one attains success in chanting it, he can enter into the transcendental position alone. One must first acquire the qualities, और फिर इसके लिए आपको qualities imbibe करनी पड़ेंगी. Mode of goodness में तो आना पड़ेगा कम से कम. अगर आप mode of ignorance में हैं और आप सोच रहे हैं कि ये सब वैदिक मंत्र आप चैंट करेंगे और इससे बेनिफिट होगा, तो एक्चुअली इससे बेनिफिट जरूरी नहीं हो, आपको साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं, आपको प्रॉब्लम्स भी आ सकती हैं. इसीलिए आप हरे कृष्ण महामंत्र चैंट कीजिए, इसमें कोई प्रॉब्लम की गुंजाइश नहीं. ये मंत्र जो है ये कलयुग के लिए स्पेसिफिकली बना है, तो इसमें बेनिफिट ही बेनिफिट है, लॉस नहीं. इसलिए
अपने आप को चैंट करके मूड ऑफ गुडनेस में तक लेके आइए, फिर उसके बाद आप बाकी मंत्र भी चैंट कर सकते हैं। तो इसलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसकी चैंटिंग कहीं भी कर सकते हो आप, कैसे भी कर सकते हो, कोई स्थिति इतनी मैटर नहीं करती। लेकिन कई सारे वैदिक मंत्र हैं जिनके लिए आपको पूरे अच्छे तरीके से, जैसे नहा धो के सुबह के टाइम पे सर्टेन उसमें करना पड़ेगा, हर एक के लिए रूल्स है। फिर यहाँ बताया गायत्री मंत्र इज वेरी इंपॉर्टेंट वैदिक सिविलाइजेशन एंड इज कंसिडर्ड टू बी साउंड इनकारनेशन ऑफ ब्रह्मन। ब्रह्मा इज इट्स इनिशिएटर एंड पास डाउन फ्रॉम हिम डिसिप्लिन। तो ब्रह्मा जी जो है उनसे आ रहा है ये मंत्र, गायत्री मंत्र बहुत इंपॉर्टेंट और पावरफुल है। फिर आगे बता रहे हैं कि सारे महीनों में जो नवंबर दिसंबर का मंथ है, नवंबर दिसंबर मींस मार्ग शीर्ष, जो अपने वैदिक हिंदी कैलेंडर है उसमें मार्ग शीर्ष का महीना बोला बताया गया है, जो नवंबर और दिसंबर के टाइम पे पड़ता है। वो टाइम जो है वो अच्छा है, क्योंकि बता रहे हैं कि इस वक्त कई सारी ग्रेन्स जो है, फसल जो है वो कलेक्ट होती है, तो लोग बड़े खुश होते हैं फसल उगी, तो ये बहुत अच्छा है। और इसके अलावा प्रभुपाद ये भी बता रहे हैं स्प्रिंग सीजन्स भी जो होते हैं वो भी बहुत अच्छे होते हैं, कृष्णा के पास टाइम्स उसमें होते हैं और सब लोगों को आनंद मिलता है। ओके, किसी और का कोई क्वेश्चन कमेंट? नहीं तो आगे चलेंगे, हम एक और कर लेते हैं आज, क्योंकि ये चैप्टर हम कल तक कोशिश करेंगे कि खत्म कर दें। ठीक है, हरे कृष्णा। हाँ हरे कृष्ण, बताइए। प्रीवियस शो में कोई क्वेश्चन नहीं, जस्ट कमेंट, गायत्री मंत्र जो शेयर करना था, जो कहते हैं जो गायत्री मंत्र का जो फर्स्ट सिलेबल होता है वो वाल्मीकि रामायण का एवरी 1000 श्लोक का फर्स्ट सिलेबल से बना हुआ है। लाइक गायत्री मंत्र has 24 syllable and Valmiki Ramayana has 24,000 श्लोक. यस, So every first word and of every 1000th श्लोक becomes a Gayatri mantra. ओके, वेरी नाइस, थैंक यू। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो नेक्स्ट में चलते हैं फिर हम। द्यूतं चलतामस्मि, द्यूतं चलायातम् अस्मि, तेजस्विनामहं, तेजस्तेजस्विनामहम्, जयोस्मि व्यवसायोस्मि, जयोस्मि व्यवसायोऽस्मि, सत्वं सत्वतामहं, सत्वं सत्वं सत्त्वमहम्। कौन पढ़ेगा? हरि बोल, should I read? हाँ पढ़ो। Translation: I'm also the gambling of cheats, and of the splendid I'm the splendor. I'm victory, I'm adventure, and I'm the strength of the strong. But there are many kinds of cheaters all over the universe. Of all cheating processes, gambling stands supreme and therefore represents Krishna. As the supreme, Krishna can be more deceitful than any mere man. If Krishna chooses to deceive a person, no one can surpass him in his deceit. His greatness is not simply one-sided, it is all-sided. Among the victorious, he is victory. He is the splendor of the splendid. Among the enterprising and industrious, he is the most enterprising, the most industrious. Among adventurers, he is the most adventurous, and among the strong, he is the strongest. When Krishna was present on earth, no one could surpass him in strength. Even in his childhood, he lifted Govardhana hill. No one can surpass him in cheating. No one can surpass him in splendor. No one can surpass him in victory. No one can surpass him in enterprise. And no one can surpass him in strength. Hari Bol. हरे कृष्णा, थैंक यू। तो यहाँ पे भगवान बता रहे हैं कि जो चीट की बात कर रही है, आई एम ऑल्सो द गैम्बलिंग ऑफ चीट्स, मतलब के
अगर हम देखें प्रवृत्ति क्या होती है इंसान की, कंडीशन स्टेज में हम चीटिंग प्रोपेंसिटी जो है वो हमारे अंदर है, और ये चीटिंग प्रोपेंसिटी जो है ये भी हम भगवान के साथ भी चीटिंग शुरू कर देते कई बार। ये नहीं, ये भूल जाते हैं कि भगवान जो है वो चीटर्स के भी गुरु है। और क्या बता रहे हैं, गैम्बलिंग कह रहे हैं, क्या आई एम ऑल्सो द गैम्बलिंग ऑफ चीट्स। यहाँ प्रभुपाद पर्पट में समझा रहे हैं, देयर आर मेनी काइंड्स ऑफ चीटर्स ऑल ओवर द यूनिवर्स, ऑफ ऑल चीटिंग प्रोसेसेस गैम्बलिंग स्टैंड्स सुप्रीम एंड देयरफॉर रिप्रेजेंट्स कृष्णा। तो गैम्बलिंग किसी चीज में भी अगर जो एक्सट्रीम चीज है वो एक्चुअली कृष्णा के उससे आ रही है, तो गैम्बलिंग भी कृष्णा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब इसका मतलब ये नहीं कि हम जाके गैम्बलिंग शुरू कर दें, इसका मतलब ये है कि हमें समझना चाहिए कि ये चीटिंग प्रोपेंसिटी जो है इसको हटाना है हमने, और गैम्बलिंग वगैरह नहीं करनी, और भगवान की सेवा में लगना है। तो चीटिंग प्रोसेस जो है वो भगवान के साथ चीट नहीं करनी। कई बार लोग सोचते हैं अरे मेरे पास ये नोट फटा हुआ है, कहीं नहीं चलेगा, चलो मंदिर में तो चल जाएगा, चलो मंदिर में डाल दिया, भगवान देखो मैंने दिया आपको। तो ऐसे ये चीटिंग प्रोपेंसिटी। एक बार क्या हुआ, एक व्यक्ति था, वो उसको पॉपकॉर्न खाने का मन था, लेकिन उसे बोला कि भाई ये इसको भगवान को आप ऑफर कीजिए फिर ही लीजिएगा। तो ठीक है, तो पॉपकॉर्न लेके जा रहा था वो कि भगवान को ऑफर करना है। तभी क्या है जोर से एक्चुअली पॉपकॉर्न लेके जा रहा था क्योंकि खुद खाना है उसको। तो भगवान को ऑफर उसने कहा क्या करना है आप खा लो ऐसे। तो तभी क्या, तो जोर से आवाज हवा आई और हवा में आधा उड़ के चला गया डब्बा। तो तभी वो बोलने लगा ओम श्री विष्णु श्री विष्णु। मैंने कहा देखो भगवान आपको ऑफर कर दिया मैंने, ये जो उड़ के चला गया। तो ये चीटिंग प्रोपेंसिटी, आपने भगवान को क्या ऑफर किया, सब भगवान से ही आ रहा है। और अगर हम भगवान के साथ भी चीटिंग करेंगे ऐसी, बड़ी होप अच्छा नहीं है फिर हमारा फ्यूचर जो है वो हमारा फ्यूचर की अच्छे लक्षण नहीं दिख रहे, क्योंकि इसका मतलब ये है मटेरियल वर्ल्ड में रहेंगे। स्पिरिचुअल वर्ल्ड जाने के लिए एक्चुअली हमारे को ऑनेस्ट रहना पड़ेगा भगवान के साथ। हमें अगर हमारे अंदर है लस्ट, ग्रीड, एंगर, एनवी, प्राइड, डिल्यूजन, कोई भी अनर्थ है हमारे अंदर, सारे अनर्थ हैं जो भी हमें रोक रहे हैं, वो भगवान से बताने हैं भगवान ऐसा हो रहा है, तभी सॉल्यूशन मिलेगा। अगर आप डॉक्टर को सही अपनी प्रॉब्लम नहीं बताओगे तो डॉक्टर कैसे इलाज करेगा, कर नहीं सकता। उस तरह भगवान को आप अगर सही तरीके से सरेंडर करके अपना नहीं हृदय नहीं खोलोगे आप, तो भगवान आपकी मदद एक्चुअली कर नहीं पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि भगवान ने आपको फ्री विल दी है, जैसे आपको इस्तेमाल करना है करो। और अगर आपको भगवान को ही चीटिंग करनी है तो भगवान इंटरफियर नहीं करेंगे। फिर यहाँ बताया जा रहा है कि as supreme Krishna can be more deceitful than any mere man। भगवान जो है अगर वो आए चीट करने पे तो वो सबको पीछे छोड़ सकते। जैसे दुर्योधन को देखो आप, दुर्योधन ने इतने प्रकार से पांडवों को चीट करने की कोशिश की और कृष्णा ने उसके सारे रिकॉर्ड जो है वो तोड़ दिए युद्ध भूमि में। कर्ण को ऐसे ही मार सकता था अर्जुन, लेकिन कृष्णा ने ऐसे अरेंज किया कि देखे कि दिखाने के लिए कि जैसे को तैसा, अगर आप ठीक से नहीं बिहेव करोगे तो फिर आपको वैसे ही खानी पड़ेगी। Krishna chooses to deceive a person. No one can surpass him in his deceit. His greatness is not simply one-sided, it is all-sided। तो भगवान कोई एक चीज में महान नहीं है, वो हर चीज में महान है। इवन चीटिंग में भी वो महान है, उनका कंपैरिजन नहीं हो सकता। फिर आगे बता रहे हैं भगवान क्या कह रहे हैं, आई एम विक्ट्री, आई एम एडवेंचर, आई एम द स्ट्रेंथ ऑफ द स्ट्रॉन्ग। तो among the victorious he is victory, he is the splendor of the splendid, among the enterprising and industrious he is the most enterprising, the most industrious। मतलब जो कोई विजयी भी हुआ तो विक्ट्री क्या है, वो भगवान को रिप्रेजेंट कर रही है। जो सबसे एक्सट्रीम चीज है
जैसे भगवान ने कह रहे हैं ही इज द स्प्लेंडर ऑफ स्प्लेंडेड, मतलब प्रभुपाद यहाँ एक्सप्लेन कर रहे हैं। और जो बहुत ज्यादा इंडस्ट्रियस हैं, एंटरप्राइजिंग है, उनमें भगवान जो है वो सर्वश्रेष्ठ। अमंग एडवेंचर्स ही इज द मोस्ट एडवेंचरस, सबसे एडवेंचरस है भगवान। आप देखो, अगर वृंदावन की लीलाओं में देखो आप, तो कितने सारे आ रहे हैं क्या कहते हैं उनके, राक्षस, और भगवान और उनके जो सखा हैं सब वहां एंजॉय कर रहे हैं उनको, उनके साथ युद्ध कर रहे हैं। तो ये सब एडवेंचर हो रहा है। अमंग द स्ट्रॉन्ग ही इज द स्ट्रॉन्गेस्ट, और कोई भी ऐसा वहां पे वृंदावन में राक्षस आया नहीं जिनको कृष्णा ना मार पाए हो। कृष्णा इतने स्ट्रॉन्ग है और उनको कोई जरूरत नहीं अस्त्र शस्त्र की, हाथ से ही उन्होंने कर दिया सबका काम तमाम। कोई भी उनसे सरपास नहीं कर सकता था स्ट्रेंथ में। इवन इन चाइल्डहुड ही लिफ्टेड, गोवर्धन पर्वत उठाया उन्होंने। No one can surpass him in cheating. No one can surpass him in splendor. No one can surpass him in victory. No one can surpass in enterprise. And no one can surpass him in strength. तो ये सारी क्वालिटीज है भगवान की, इनसे कोई भी भगवान को सरपास नहीं कर सकता। ओके, तो आई थिंक ये अब हम नेक्स्ट 37 हम कल करेंगे, 37 और उसके बाद से किसी का कोई क्वेश्चन, कमेंट, कोई पॉइंट है तो हम ले लेते हैं, अदरवाइज वी विल कंक्लूड। सबको क्लियर हो रहा है, समझ आ रहा है? ये तो ज्यादातर चीजें तो यहाँ स्ट्रेट फॉरवर्ड ही हैं, बहुत ज्यादा फिलॉसफी है नहीं इसमें, है ना? ओके, तो हम यही स्टॉप करते हैं। ग्रंथराज भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।